من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا لي مولا مولا من كنت مولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع ہے طریقت کی بنیاد پر. کچھ لوگوں سے ہم تک سوال پہنچا ہے کہ شریعت ہی سب کچھ ہے اور طریقت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو اس بات کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بات لا علمی کا نتیجہ ہے. جس انسان نے غور و فکر نہ کیا ہو، دین کو مکمل طریقے سے دیکھا نہ ہو، تو ایسے قسم کی بات وہ شخص کرتا ہے. لہٰذا آج کا موضوع جو ہے وہ اسی بات پر رکھا گیا ہے کہ طریقت مقصود شریعت ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو شریعت کیا ہے سمجھنا ضروری ہے. قرآن اور حدیث سے جو قانون بنائے گئے اس قانون کو شریعت کہتے ہیں. اور تھوڑا اگر ہم گہرائی میں جائیں گے شریعت کیا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے 3 قسم کے علوم ہیں، یا 3 قسم کے علوم کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں. کون کون سے علوم ہیں وہ؟ تو پہلا ہے علوم عقائد. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کون سا علوم ہے؟ علوم عقائد. دوسرا ہے کون سا علوم ہے؟ دوسرا ہے علوم احکام. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پہلا کیا ہے؟ علوم عقائد. دوسرا علوم احکام. اور تیسرا جو ہے وہ علوم اخلاص کہلاتا ہے. تو کتنے علوم ہو گئے؟ یہ 3 علوم کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں. یہ 3 علوم کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں. تو علوم عقائد کیا ہے؟ بڑی سادی سی بات ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے نا. واٹ آر آور بلیفس؟ ہم کس چیز کے اوپر یقین کرتے ہیں. ہمارے بلیف سسٹم کا جو ڈھانچہ ہے بنا ہوا وہ اصل میں کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. یہ ساری گہرائی اور حقیقت جو ہے یہ کہاں پر ملے گی؟ تو علوم عقائد میں ملے گی. ہمارا عقیدہ کیا ہے. اسے آپ سمجھ لو ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے. ایمان لاہم اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے محبوب پر، اس کے رسول پر، پورے ملائکۃ ارواح پر، بعد مرنے کے اٹھانے پر. یہ تمام جو باتیں آ رہی ہیں یہ علوم عقائد میں ہے. اس سے ہمارا ایک عقیدہ بنتا ہے، اس سے ہماری ایک سمجھ پختہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ہم کو جو ہے اسلام کو سمجھنا ہے، اس طریقے سے ہم کو اپنی زندگی لے کر کے چلنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم کو ماننا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا علوم عقائد. دوسرا علوم کیا ہے؟ دوسرا علوم کیا ہے؟ علوم احکام. دوسرا علوم کیا ہے؟ علوم احکام. تو علوم احکام کیا حقیقت بتاتا ہے؟ علوم احکام سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں. تو یہ تمام جو عبادات ہے، یہ تمام جو فرائض جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ فرائض کے ادائیگی کے طریقے کو کس طریقے سے کیا جائے اسے کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ علوم احکام. تو احکامات کو سمجھنا ہے نا. احکامات کو سمجھنا یہ کیا ہو گیا؟ علوم احکام. اب اسی احکامات کو اگر آپ تھوڑا اور گہرائی میں دیکھو، ہے نا، پہلا تھا علوم عقائد. علوم عقائد کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے نا، ہمارا ایمان کیسا ہو. علوم احکام جو ہے اس کا تقاضا کہاں پر ہے؟ عمل سے ہے.
कहाँ से है? अमल से है। इसका ताल्लुक अमल से है कि हमारे नमाज के अंदर हमारा क़याम कैसा हो, हमारा रुकू कैसा हो, हमारा सुजूद कैसे हो, हमारा, है ना, हर चीज़ जो है, तमाम जो अहकामात है उसकी तारीफ़, उसकी हकीकत, उसको किस तरह से अदा किया जाए, हाँ, ये तमाम चीज़ें जो है ये उलूम अहकाम से मिलती है। अब इसी उलूम को जो है हमने सुन रखा है ना, फ़िक़्ह, ये उलूम फ़िक़्ह भी है, इसी को उलूम फ़िक़्ह भी कहते हैं। तो अगर हम तमाम, अभी हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक आ गई उलूम अहकाम, अहकाम का इल्म हमको आ गया, दूसरा आ गया उलूम अकाइद। ये दोनों इल्म अगर हमने सीख लिया तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा ईमान मुकम्मल हो गया, लेकिन बात ऐसी नहीं है। इसके बाद है उलूम इखलास, और ये उलूम इखलास क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है, इसको समझो, तब आपको तरीक़त समझ में आ जाएगी। उलूम इखलास क्या है ना? तो इसको समझने की हकीकत क्या है, थोड़ा गौर व फिक्र से समझो। तो उलूम इखलास किसे कहते हैं? हमने बचपन से सुन रखा है, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, माने क्या हो गया? नमाज मोमिन की मेराज है। बचपन से सुन रखा है ना? क्या सुना? नमाज मोमिन की मेराज है ना? नमाज मोमिन की मेराज है। अब मेराज लफ्ज़ का इस्तेमाल इसमें हो रहा है, और ये बात हमने नहीं कही है, तो हुजूर सरकार वसल्लम से आई है। आप वसल्लम फरमाते हैं क्या? नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज क्या है? मोमिन की मेराज है। तो जब ये बात आपने कही, इसके अंदर थोड़ी हम गहराई से अगर देखें, झांक कर इसको, तो लफ्ज़ मेराज क्या है, तो पता ये चला कि लफ्ज़ मेराज जो है, अल्लाह उसके महबूब के दरमियान जो मेराज हुई, वो तो दीदार है ना, वो तो दीदार हो गया ना। तो जब तक हमारी नमाज है ना, जब तक हमारी नमाज उस लेवल पे नहीं पहुंचती है जहां हम अपने रब का दीदार कर सकें, तब तक वो सलात जो है, वो नमाज जो है, वो हमारी मेराज नहीं बनी। वो नमाज जो है वो मेराज नहीं बनी। उसको मेराज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब समझ में आया कि अगर हमने फ़िक़्ह का दरवाज़ा खटखटाया, फ़िक़्ह का दरवाज़ा खटखटाया, तमाम फ़िक़्ह की तमाम किताबें अगर आप पढ़ लो, तमाम किताब के अंदर आपको जो है, अगर आपने ये सवाल अर्ज़ किया उन किताबों से, ये बताइए आप कि जब मैं नमाज अदा करता हूँ तो मेरा दिल जो है, रुख जो है वो तो काबा की तरफ हो जाता है, लेकिन दिल जो है वो रब्बे काबा की तरफ नहीं हो पाता। दिल जो है, ध्यान मेरा अल्लाह की तरफ नहीं लग पाता, मेरा ध्यान कहीं ना कहीं और चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम का सल्यूशन अगर आपने फ़िक़्ह से पूछा, फ़िक़्ह का दरवाज़ा खटखटाया, तो वो बोलेंगे नहीं है, इसका कोई सल्यूशन हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है? कैसे अदा करना, ये तरीके हम आपको बताएंगे। इसमें फ़राइज़ क्या है, वाजिबात क्या है, हाँ, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कौन सा तरीके से करना है, क्या नहीं करना है, ये हम बता सकते हैं। फ़िक़्ह की किताबें कहेंगी ये हम बता सकते हैं। लेकिन अगर वो उनको पूछा जाए कि हुजूर ये कल्ब कैसे नसीब हो, तो वो फ़िक़्ह की किताबें नहीं बता पाएंगे। हमारा ध्यान, रुख, चेहरा मुबारक तो काबे के सामने है, लेकिन दिल रब्बे काबा के सामने नहीं जा रहा, दिल कहीं और चला जा रहा है। ये प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है, ये अगर अकायद की किताबों से पूछेंगे तो उसमें नहीं है, अकायद की किताबों में भी नहीं है, उसमें अकीदे का बयान मिलेगा। अहकामात की किताबों से पूछेंगे, फ़िक़्ह की किताबों से पूछेंगे, वहाँ पर भी नहीं है। तो फिर इसका सल्यूशन है कहाँ? तो फिर बुज़ुर्गों ने बताया कि इसका सल्यूशन ये किताबों में नहीं है। अगर इसका सल्यूशन चाहते हो तो फिर तीसरा एक दरवाज़ा है, और उस दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा। कौन सा दरवाज़ा है? वो तसव्वुफ़ का दरवाज़ा है। कौन सा दरवाज़ा है? तसव्वुफ़ का दरवाज़ा। तो तसव्वुफ़ के दरवाजे को जब आप खटखटाओगे,
ہے نا. माने आप किसी मुर्शिद कामिल से मुलाकात करते हो और आप अपना ये प्रॉब्लम, भाई मैं नमाज तो पढ़ता हूँ और शरीयत की रोशनी में बेशक आपकी नमाज मुकम्मल हो गई, भाई आपने कपड़े पाक सुथरे पहने हुए हैं, आपने जो है गुस्ल किया हुआ है, आपने वज़ू किया हुआ है, आपके कपड़े पाक है, आपका जिस्म पाक है, आपने सही ढंग से जो है सारी अदायगी करी नमाज की, तो आपकी नमाज शरीयत की रोशनी में, फ़िक़्ह की रोशनी में हो गई. लेकिन साहिब तरीक़त के पास आओ तो बोलेगा नहीं हुई, नमाज मुकम्मल नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? यहाँ दिल का हाल देखा जाता है. क्या दिल उस वक्त अपने रब के हुजूर में था या कहीं और था? अगर कहीं और भटक रहा था तो नमाज नहीं हुई, है ना. अगर कहीं और भटक रहा था तो नमाज नहीं हुई. तो इसको राह रास्त पर लाने का तरीका क्या है? इस राह रास्त पर लाने का तरीके को कहते हैं तरीकत, है ना. अगर इस नजर से, अभी जो हमने पूरा ये बताया, इस नजर से अगर हम देखें तो हमको समझ में आता है क्या कि शरीयत का जो असल मकसद था कि ए बंदे तू काबे की तरफ रुख हो जा, हाँ तू 5 वक्त नमाज अदा कर, तू ये कर, है ना, तमाम अहकामात जो अदा करवा रहे हैं, उसका जो असल मकसद है कि ध्यान तेरा अल्लाह की तरफ लग जाए, वो नहीं लग पा रहा है. हाँ अहकामात हो रहे हैं लेकिन ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं लग पा रहा है. तो ये जो असल मकसद था शरीयत का, वो हल किधर हो रहा है? तरीकत में हो रहा है. इसीलिए सूफिया इकराम, औलिया इकराम की जो तालीमात आई तरीकत की, वो इस हकीकत से जुड़ती है कि अब इसको अगर एक लाइन में समराइज कर लिया जाए, है ना, इसका अगर समरी बयान करूं तो यही कह सकते हैं तरीकत मकसूद शरीयत है. क्या है? तरीकत मकसूद शरीयत है. कि अगर आपको शरीयत की अदायगी बिलखुलूस बेलौस अपने रब के सामने अपने आप को पेश करना है तो उसका तरीका तरीकत है. और ये हासिल होगा किसी मुर्शिद कामिल के दामन को थामने के बाद. वही तरीका कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा इकराम ज़ेर हुए, आपके चेहरे मुबारक को देख करके कलमा पढ़ लिया. वही तरीका, जब तक कि आप किसी मुर्शिद कामिल के पास आकर के ज़ेर नहीं होते और वहाँ से आप इस हकीकत को हासिल नहीं करते, तब तक आपकी नमाजें, आपकी इबादत मकबूल नहीं हो सकती. फिर भी एक जहन में किसी के बात आएगी, कहेंगे कि नहीं भाई हमने तो यही समझा है कि दीन क्या है, और लोग अक्सर कहते हैं दीन क्या है, बोले नहीं, दीन का माने ये है, लोगों का कहना है कि अकीदा है और अमल, अकीदा और अमल, बस इसी को कुल दीन लोगों ने मान लिया आज के तारीख में. आज के जो हालात है, ज़िंदगी है, वो हम बता रहे हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है. और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ. हदीस जिब्रील जो है आई है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है. और उस हदीस के अंदर जो है बहुत क्लियर कट तरीके से जो है खुद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के जो है हुजूर पाक से सवाल किए, है ना. तो सवाल पहला क्या था, पिछले बयान में भी हम बता चुके हैं. क्या सवाल था पहला? हाँ, कि ईमान क्या है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ईमान की तफसीलात बयान कर दी. ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसके महबूब पर, कुरान मजीद में ना, कुरान पर ईमान लाया, फिर पूरे मलाइकत अरवाह, तो बाद मरने के उठाने, है ना. तो ये तमाम जो बातें आई है, ये ईमान के तारीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया. उसके बाद जो है क्या सवाल किया, दूसरा सवाल क्या हो गया, तो इस्लाम क्या है. तो इस्लाम क्या है, इस पर क्या जवाब दिया कि ये जो 5 फ़राइज़ की अदायगी का नाम इस्लाम है. कलमा शहादत जो है, उसके बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, है ना. अब जो कहने वाले तरीकत को जो रद्द कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि इस हदीस के अंदर जब ये 2 बातें आई तो इतने पे हुजूर पाक और इतने पे
जिब्रील अमीन ने बस कर देना था, है ना। 2 ही सवाल पूछ करके जिब्रील अमीन जा सकते थे। तब आपकी बात को हम मान लेते कि भाई आप जो कह रहे हैं बरहक है, कि भाई दीन, मुकम्मल दीन जो है, आप लोग ये कहते हैं ना, मुकम्मल दीन क्या है? अहकामात है और अकायद है, इतना ही कह रहे हैं ना। अहकामात और अकायद को ही मुकम्मल दीन मान रहे, लेकिन ये हदीस उसको रद्द कर रही है। देखो कैसे, 2 सवाल हो गए, तीसरा सवाल भी आया। तीसरा सवाल क्या कह रहे हैं? पहला सवाल मल ईमान, ईमान क्या है? दूसरा सवाल मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तीसरा सवाल मल एहसान, एहसान क्या है? अगर ये सवाल नहीं आता तो आपकी बात दुरुस्त थी, है ना। अकीदा और अमल, ये 2 पर दीन मुकम्मल हो जाता। लेकिन ये तीसरा सवाल ये साफ वाज़ेह करता है कि तरीकत नाम की चीज है, और तरीकत, तसव्वुफ, ये सारी चीज किस में आया? तो ये शरीयत का जो तीसरा उलूम है, जिसे उलूम इल्मुल इखलास कहते हैं, इल्मुल इखलास कहते हैं, वही तरीकत है, वही तसव्वुफ है। सूफिया इकराम, औलिया इकराम उसी को समझा रहे हैं अपनी खानकाहों में, उसी का दर्स दे रहे हैं। हाँ, कि इंसान का कल्ब बातिन, जब वो नमाज के लिए खड़ा हो रहा है तो उसका कल्ब बातिन कैसे पाक हो जाए, उसकी रूह कैसे पाक हो जाए। जिस्म और कपड़ा तो पाक करके आया है, लेकिन अंदर जो मैल है उसको किस तरह से साफ किया जाए। जब ये साफ हो जाए, आईना जैसा हो जाए, तब वो रब की तजल्ली जो है उसको नसीब होगी। तब उसकी जो नमाज होगी वो कैसी हो जाएगी? मोमिन की मेराज वाली हो जाएगी। नमाज कैसी हो जाएगी? मोमिन की मेराज वाली हो जाएगी। तो मैं दुआ गो हूँ, मौला इतनी अक्ल सलीम हर इंसान को अता फरमा, हर मुसलमान को अता फरमा, कि वो किसी मुर्शिद कामिल से मिले और इस बात की तलब करे। आजकल के ज़माने में लोग क्या कर रहे हैं, पीरो मुर्शिद के पास आते हैं और अपनी दुनिया तलब कर लेते हैं, मुझे दुनिया में ये चाहिए वो चाहिए। अरे भाई, ये काम नहीं है। असल काम क्या है? हक को जानना और पहचानना, ये असल काम ये है। इस बात की तलब करें, और जिसे ये तलब हासिल हो जाए बस वो वहाँ मुकम्मल हो जाए। तो जो मुगालता था कि तरीकत कुछ अलग शय है, शरीयत कुछ अलग शय है, और इन बाबाओं ने कुछ नया लेकर आए हैं, ये पहले से नहीं था, तो इसका हमने रद्द करने की कोशिश की है इस बयान के अंदर, और इससे साफ वाज़े कर रहे हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सारी चीज़ें आई हैं। और मैं दुआ गो हूँ, मौला हर किसी को तरीकत, हकीकत और मारिफत की मंजिल नसीब फरमा, ताकि उसकी शरीयत मुकम्मल हो सके।